Students, I hope all are you fine. Myself is Surendra Pal, your chemistry lecturer from Brahmda Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, class 11, subject chemistry, chapter 4. Chapter name is Chemical Bonding and Molecular Structure, part 2. Previous video are discussed ionic bond or covalent bond. Dear students, today I discuss characteristic of ionic compound or electrovalent compound. Okay, so dear students, these are following characteristic of ionic compound. Number 1, ionic compound generally crystalline solid in which oppositely charged in charged ion are closely packed in space. Okay. Number 2, ionic compound have generally high melting point and boiling point. High melting and boiling point because the presence of strong interionic force. Next point, ionic compound generally soluble in polar solvent like water. Fourth point, dear students, ionic compound are poor conductor in the solid
in the solid state since the ionic mobility is almost nil. फिफ्थ पॉइंट है आयोनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल in non-polar solvent like benzene. Last point है dear students, ionic compound are given a ionic reaction. Okay dear students, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, इसके फॉलोइंग कंपाउंड्स कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर 1 है आयोनिक कंपाउंड जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच अ पॉजिटिव चार्ज इन आयन आर क्लोजली पैक्ड इन स्पेस। आयोनिक कंपाउंड के क्रिस्टल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका चार्ज अपोजिटली, आयन जो होते हैं अपोजिटली यानी पास पास में होते हैं, क्लोजली पैक्ड इन स्पेस, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। Ionic compound have generally high melting point and boiling point because the presence of strong inter-ionic force. Ionic compound generally high melting point and boiling points वाले होते हैं because इनके molecules के बीच में या इनके atoms के बीच में strong inter-ionic force present होता है। Next point है थर्ड पॉइंट, ionic compound generally soluble in polar solvent like water. आयोनिक कंपाउंड जनरली सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं जैसे वाटर। आयोनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर इन द सॉलिड स्टेट। आयोनिक कंपाउंड पुअर कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में। सिंस द आयोनिक मोबिलिटी इज ऑलमोस्ट नील, क्योंकि इसमें आयन की मोबिलिटी जो होती है वो नील होती है। आयोनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। आयोनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। और लास्ट है आयोनिक कंपाउंड आर गिवन आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक कंपाउंड आयोनिक रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेड covalent bond formed between two atom by sharing sharing of electron full stop। covalent bond formation to explain in following theory। नंबर 1 लुईस लैंगमूर थ्योरी।
नंबर 2 बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और नंबर 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और फर्स्ट हेडिंग है लुईस लैंगमूर थ्योरी। तो डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन देखिएगा। द बॉन्ड और करके लिख सकते हैं इसे, कोवैलेंट बॉन्ड। द bond formation between two atom by mutual contribution and sharing of electron ओके। तो नई लाइन से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। द एटम टेक पार्ट in the covalent bond formation of sharing sharing 1, 2 and 3 electron pairs to formation of single, double and ट्रिपल बॉन्ड। ओके, कैसी फॉर्मेशन करेंगे? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है एग्जाम्पल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो डियर स्टूडेंट्स, H इज इक्वल टू 1। तो H और H के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 एटम्स हैं इसके। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने एटम हैं? 2। तो 1 और 1 2, 1 और 1 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। तो H सिंगल बॉन्ड H। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है Cl2 मॉलिक्यूल। द एटॉमिक नंबर ऑफ Cl इज 17।
Cl is equal to 17287. ओके, तो 1 Cl एटम और 1 Cl एटम, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. The electron is sharing by 1 electron because 8 electron is follow as octet rules. Cl single bond Cl. Okay. Next example, third example, dear students. Third example, O2 molecule. O2 molecule. The atomic number of oxygen is 8. तो O is equal to 8, 2,6. तो O 2 एटम कितने मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है. ऑक्सीजन और एटम्स कितने हैं? 2. 1 और 1 2. कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे? 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. ओके. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो O डबल बॉन्ड O. ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डियर स्टूडेंट्स, C2H4. तो डियर स्टूडेंट्स, C का एटॉमिक नंबर 6, 2,4 और H का 1. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, C के कितने एटम्स हैं? 2 और H के भी 2 हैं. 1 H के कितने? 4. 1 2 3 4. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, H के 4 एटम्स, C के 2, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स. सॉरी. और कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेगा? 2 का. ओके, 4 और 4 8 हो गए. ए भी C डबल बॉन्ड C, 1H 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 और 1H. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल, N2 मॉलिक्यूल. ओके, N2 मॉलिक्यूल. N का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, 2,5 और N के तो हैं ही. उसके बाद में जब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे, 2,5, तो N 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ओके, ऑक्टेट रूल इज फॉलो ऑफ शेयरिंग इन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड N. ओके, कन्फर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स. और लास्ट एग्जाम्पल देखिए इसी का, HCN. तो H का कितना होता है? 1, C का 6, 2,4 और N का 7, 2,5. ओके, तो HCN 1 2 3 4. 3 4 5. ओके, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 3 और 1 4 और 5 और 3 8. ओके, तो H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N. दिस टॉपिक इज कंप्लीट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, CO3 पर माइनस के 2 चार्ज कार्बोनेट आयन. ओके, C का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2,4, O का 8, 2,6. O नेगेटिव है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कितने चार्ज हैं? माइनस के 2. 1 8 + 1 = 9 और 1 पर 8 + 1 = 9. ओके, 2,7 2,7.
तो डियर स्टूडेंट्स, सी 1 एटम, 2 एटम और 1 3 एटम। ओके, कितने एटम्स हैं? 3। ओके, कन्फर्म हुआ डियर स्टूडेंट्स। माइनस के कितने आयन्स हैं? 2। कौन कौन से पे? इसमें एक में 7 फिलअप करेंगे 2 में और एक में 6। तो डियर स्टूडेंट्स 4 तो इसे में फिलअप करें पहले। 1 2 3 4। ओके, इसमें 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 6 1 2 3 4 5 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्टेट रूल्स इज फॉलो शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिकॉज दिस एटम आर प्रेजेंट 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 4 इसके अपने एलिमेंट हैं इलेक्ट्रॉन्स, 4 के और नीडेड है, तो 2 1 और 1, टोटल कितने हुआ? 8। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर देखिए। C डबल बॉन्ड O शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? इस पर हमारे पास में माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज के बारे में स्टडी कराएंगे। इस वीडियो को सीन करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। ओके डियर स्टूडेंट्स।